Literature Department at HU. I'll be hosting today's event. Today's session is to give a clear perspective to the students about Hajveri University, the programs that the university has to offer, and the scope of these programs. Our today's discussion panel is from the HU Faculty of Computer Sciences. I want to remind the students that the admissions are open for the undergraduate program at the CS department, so grab a seat if you want to excel in CS department. The faculty members of the department are highly qualified with the international academic experience, and all of whom are committed to the advancement in the computer sciences and information technology through instruction and research. Hajveri University is amongst one of the leading universities in Pakistan, chartered by the government, recognized by AGC. HU alumni are serving across the nation and world over. HU offers programs ranging from pharmacy, DPT, engineering, computer sciences, language and literature, textile and media, and many more departments, just to name a few. HU is a place of learning and research from undergraduate programs all the way up to doctoral degree programs in several multidisciplinary fields of knowledge. In this session today, we'll be talking with the faculty members of HU Computer Sciences Department. Ladies and gentlemen, let me introduce you to our today's panel. Mr. Bahar Hussain, who is a faculty member at HU in the Department of Computer Sciences. Mr. Amar Feroz, who is also a faculty member at the Department of Computer Sciences in Hajveri University. Sir Amar, now I have a few questions for you. Would you kindly introduce and give us an overview of the CS department at Hajveri University? Yes, of course. Department of Computer Science was established in Hajveri University in the year 2001. Its objective is to import the quality education in the field of computer science with rapid evolving technologies. Hajveri University have always produced quality professionals holding top-notch positions in the IT industry in Pakistan and abroad. Would you please also answer another question? What are the programs that are being offered in the CS department? Hajveri University offers multiple programs in the field of computer science departments. Hajveri University offers bachelor's in software engineering and computer sciences. Both these programs are a 4-year degree program with 8 semesters. Each semester is of 6 months in duration. And in order to enroll in these programs, a candidate must have completed FSc pre-engineering ICS with an A grade or equivalent degree. Hajveri University also offers Masters in Computer Sciences, and to get enrolled in this program, you have to have a bachelor's degree. Hajveri University also offers MPhil leading to PhD program. To get enrolled in this program, you have to have a bachelor's degree with a minimum of 2.5 CGPA. Thank you. Sir Bahar, I have a question for you. Can you kindly give us an insight that where is the most career growth in this field? Thank you. Assalamu alaikum. Actually, जहाँ तक मेरे क्वेश्चन का है तो इसमें 2-3 चीज़ें आती हैं. सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा जो न्यू आने वाले स्टूडेंट्स हैं कि मैं खुद ओल्ड हजवेरियन हूँ और मैंने जो अपना मास्टर है वो हजवेरी यूनिवर्सिटी से ही कंप्लीट किया हुआ है. मैं नॉट इन पाकिस्तान बल्कि बाहर के ममालिक में भी 2 और 3 कंट्रीज़ के अंदर जो है वो पढ़ा चुका हूँ. हजवेरी जहाँ तक हजवेरी का मैं बात करूँ तो हजवेरी इस लिहाज से बहुत बेटर है बाकी तमाम यूनिवर्सिटीज़ से कि इसमें आपको जो भी फील्ड आप सिलेक्ट करते हैं, चाहे वो कंप्यूटर साइंस है, चाहे वो आपका सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, आपको प्रैक्टिकल जो है वो बहुत ज़्यादा मिलेगा. यहाँ की जो फैकल्टी है वो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी है और ये ना पाकिस्तान में बल्कि जो हमारे स्टूडेंट्स फॉरेन के अंदर इस वक्त जा चुके हैं वो भी इस चीज़ को बड़े वाज़े अल्फाज में कहना पड़ता उन्हें कि हम हजवेरी के ग्रेजुएट. और मैं अगर अपनी एग्जांपल दूं तो हम लोग कोई 14-15 स्टूडेंट्स थे जिन्होंने हजवेरी से ही मास्टर किया है कंप्यूटर साइंस के अंदर, और सिवाय मेरे कोई भी इस वक्त पाकिस्तान में नहीं है. कुछ यूके में बैठे हुए, कुछ कनाडा में बैठे हुए, कुछ अमेरिका में बैठे हुए और सारे जो है स्टेबल हो चुके हैं. लेकिन अगर मैं भी फॉरेन में था,
कुछ इश्यूज हुई, पाकिस्तान में आ गया। यहाँ पे भी मैं अभी जहाँ पे जॉब कर रहा हूँ, जिस कंपनी में भी इस फैकल्टी, एक तो मैं इस यूनिवर्सिटी का एज ए फैकल्टी मेंबर हूँ, प्लस दूसरी तरफ अगर मैं ये बात करूँ कि मैं जिस कंपनी में जॉब कर रहा हूँ वहाँ पे आज मैं COO का जॉब कर रहा हूँ। तो अब इसके पीछे अगर मैं पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की बात करूँ, कैरियर डेवलपमेंट की बात करूँ, तो इसमें हजवेरी का बहुत ज़्यादा रोल है। खास करके जो इनकी मैनेजमेंट टीम है, इनकी फैकल्टी है, ये ज़्यादातर स्टूडेंट को ना सिर्फ प्रैक्टिकली टीच करते हैं, बल्कि उसको कंपनीज के अंदर, जो कंपनीज में फ्रेश टेक्नोलॉजीज हमारी यहाँ आ रही हैं, उनके बारे में बताते हैं। और कोशिश ये करते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट जो है वो जॉब प्लेसमेंट में ज़्यादा से ज़्यादा जाएं, और जो ग्रेजुएट होते हैं फ़ौरन ही उनके पास कोई ना कोई जॉब ज़रूर होती है। अब इसमें डिपेंड कर होता है स्टूडेंट्स के ऊपर। देखिए हमारे यहाँ पे मल्टीपल यूनिवर्सिटीज़ हैं। लोग ये देखते हैं, जहाँ तक मैंने सर्वे किया है, अब लाहौर में ही आप देख लें, कोई आपके पास 15-20 यूनिवर्सिटीज़ है, लेकिन अगर फीसिस की बात की जाए तो हजवेरी की फ़ीस सबसे कम है। बाकी यूनिवर्सिटीज़ में फीसिस हैं, लेकिन उसका वो मेयार स्टडी का नहीं है जो मैंने हजवेरी के अंदर देखा, या मैं खुद अब टीच कर रहा हूँ, इसीलिए ये नहीं कि मैं हजवेरी को ज़्यादा वो करूँगा। मैंने टीचिंग ऑफ लेवल जो हजवेरी में देखा है वो बाकी यूनिवर्सिटीज़ में मैंने वो नहीं देखा, एक चीज़। दूसरा ये है कि इनकी कैरियर डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा है। ईच एंड एवरी टीचर जो भी सब्जेक्ट पढ़ा रहा है वो स्टूडेंट को उसके म्यार के मुताबिक, उसके जो है कैरियर, उसको बताता है कि अगर आपकी ग्रोथ इसमें है। देखिए आप BS के अंदर हो, आप BS CS कर रहे हो या SC कर रहे हो, आपने 32 या 36 सब्जेक्ट जरूर पढ़ने हैं। तो इट मीन्स आपके पास 36 फील्ड्स हैं। आप 36 फील्ड में कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो। आपकी मर्जी आप किसी सॉफ्टवेयर हाउस में चले जाओ, आपकी मर्जी आप अपना प्रोडक्शन हाउस बना लो, आपकी मर्जी आप एनिमेटर बन जाओ क्योंकि इसमें ग्राफिक्स सब्जेक्ट्स हैं, आपकी मर्जी आप नेटवर्किंग में चले जाओ, आपकी मर्जी आप नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर बन जाओ, क्यों, इसमें नेटवर्किंग के भी सब्जेक्ट्स हैं। अब आपकी मर्जी आप रोबोटिक्स पे काम कर लो, क्यों, इसमें AI का सब्जेक्ट है, रोबोटिक्स के सब्जेक्ट्स हैं। इसी तरह प्रोग्रामिंग के भी बहुत ज्यादा सब्जेक्ट। ये दोनों फील्ड एक दूसरे के साथ मिलती जुलती हैं, लेकिन अगर हम इसको ये कहना कि कैरियर इसका नहीं है, मैंने अक्सर सुना जी हमने BS CS कर लिया, BS SE कर लिया, लेकिन मार्केट में जॉब नहीं है। जॉब है, बहुत ज्यादा जॉब है, लेकिन आपको उस म्यार का काम भी करना है। अगर आप CS हो तो भी आपको पढ़ना है, अगर आप SE के स्टूडेंट हो तो भी आपने पढ़ना है। थैंक यू। Another question that I have for you, Sabahar, is that how does HU School of Computer Sciences prepare its students like in a better way compared to other counterpart universities that are functioning in Pakistan right now? अब उसमें ये है कि अगर मैं ये बात करूं कि हजवेरी यूनिवर्सिटी में जहाँ तक फाइनल प्रोजेक्ट की अगर हम बात कर लें तो उसमें क्या होता है कि सबसे पहले हम स्टूडेंट्स कि जो उन्होंने 36 सब्जेक्ट्स या 32 सब्जेक्ट्स में पढ़ के आए हैं, अब उनमें ग्रिप्स किसकी ज़्यादा है। अब आप मैं अगर फील्ड्स की बात करूं तो हमारे पास वेब डेवलपमेंट है, वेब डिज़ाइनिंग है, इसी तरह रोबोटिक्स है, आपका इमेज प्रोसेसिंग है, आपके पास न्यूरल नेटवर्क्स है, फिर आपके पास नेटवर्किंग है। नेटवर्किंग में फिर 3-4 ट्रैक हैं आपके पास। आप साइबर सिक्योरिटी की तरफ चले जाएं, आप स्विचिंग एंड राउटिंग की तरफ चले जाएं, आप जो है सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ चले जाएं। इसी तरह अगर मैं प्रोग्रामिंग की बात करूं तो प्रोग्रामिंग में हमारे पास जैसे कि जावा है, C++ है, आपके पाइथन है, इसी तरह आपके पास M4 है। तो आप एज ए प्रोग्रामर भी कहीं पे भी किसी भी सॉफ्टवेयर हाउस में चले। अब आप ये तो नहीं कह सकते कि जी मैंने डिग्री स्टार्ट की और मुझे फौरन जॉब मिल जाए। मैंने कई ऐसे स्टूडेंट्स भी देखे हैं जो डिग्री भी कर रहे हैं और साथ के साथ में CS है या SC में है, साथ के साथ जॉब भी कर रहे हैं, लेकिन वो जॉब उनसे अनरिलेटेड है। लेकिन जब वो 2nd-3rd सेमेस्टर क्लियर कर चुके होते हैं तो काफी स्टूडेंट्स हमने ऐसे देखे हैं जो डेवलपमेंट में भी आ चुके हैं, जो प्रोग्रामिंग में भी जा चुके हैं, जो आपके रोबोटिक्स यानी कि ऑटोमेशन है उसमें भी काम कर रहे हैं। अब इसमें क्या है, इसमें टीचर ने जितना आपको 36 या 32 लेक्चर्स में पढ़ाना है, टीचर ने आपको गाइड करना है। स्टूडेंट्स के ऊपर डिपेंड होता है कि वो उस गाइडेंस को किस लिहाज से, किस लेवल के ऊपर लेके जा सकता है। मिसाल के तौर पर मैं एग्जांपल देता हूं कि आजकल का ट्रेंड चला हुआ जी पाइथन है, आजकल का ट्रेंड चला हुआ है F# होनी चाहिए, आजकल का ट्रेंड है .NET पे काम। अगर .NET की ही एग्जांपल ले लें तो हमारे पास इस वक्त 3 ऐसी टेक्नोलॉजी हैं जो कि आपने चाहे CS किया है चाहे SC किया है, लेकिन आपको इन तीनों टेक्नोलॉजीज के अंदर जाना पड़ेगा। मिसाल के तौर पे आजकल सेल फोन का बहुत ज्यादा ट्रेंड है। सेल फोन में हम अगर देखते हैं तो हमारे पास एंड्रॉयड है,
एप्पल सेल फोन है, इस तरह विंडो मोबाइल फोन है। अब जिस बच्चे ने .NET किया हुआ तो इट मींस वो एक विंडोज सेल फोन का एक अच्छा प्रोग्रामर बन सकता है। जिस बच्चे ने जावा पढ़ी हुई है इट मींस वो एक एंड्रॉयड का अच्छा प्रोग्रामर बन सकता है। जिस बच्चे ने C and C++ किया हुआ है, PHP पढ़ा हुआ है, वेब डेवलपमेंट के कोर्स किए हुए हैं, इट मींस कि वो बच्चा एक अच्छा मैक OS का जो है वो डेवलपर बन सकता है। तो आगे आपके पास फील्ड बहुत ज्यादा है। डिपेंड करना है कि आप जो अपनी स्टडी के अंदर पढ़ रहे हो उस स्टडी को कितना पॉजिटिवली जो है वो आप लेके चलते हो और किस तरीके से आप उसको जो है वो आगे फील्ड में कैश करते हो। कैश बहुत, अगर मैं आप ये बात करूं कि जी इनकम नहीं है, मैं कहता हूं कि मैं अगर अपनी एग्जांपल दूं तो जितना पैसा जो है मेरी स्टडी पे, मेरे अक्सर वालिद साहब मुझे कहते होते हैं कि जी मैंने आप पे 25 लाख लगा दी। मैं कहता हूं जी जितने 25 आप लगाए उससे मल्टीपल आपको मैं जो है वो रिटर्न कर चुका हूं। अगर मैं अभी रिसेंटली की एग्जांपल दूं तो अभी मेरी इस वक्त जो सैलरी है वो 1.3 होगी या 1.4 होगी। अब इसके अंदर जो ये के मुझे मिल रहे हैं वो क्या है, मेरा एक्सपीरियंस है प्लस मेरी वही स्टडी है जो मैंने मास्टर में कंप्यूटर साइंस के अंदर हासिल की है। इसी तरह जो भी फील्ड आप सिलेक्ट करो, चाहे आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सिलेक्ट करो, चाहे आप कंप्यूटर साइंस सिलेक्ट करो, आपको उस फील्ड को एज ए कैरियर ही लेके चलना है। ये नहीं लेना कि जस्ट ये मेरे पास डिग्री है, मैं इस डिग्री को जो है वो कर लूंगा, उसके बाद कोई छोटा मोटी जॉब नहीं। जो डिग्री आप सिलेक्ट कर रहे हो आप उस डिग्री के साथ ईमानदार हो जाओ और आपको फ्यूचर के अंदर वही डिग्री आपको इतना अर्न करवाएगी कि आपकी सोच से भी बाहर है। थैंक यू। Coming back to you, Sir Amar, there's another question. Can you just give us like an overview of what is the difference between SE and CS? Thank you for asking me this question. A lot of people have been asking me the same question about the difference between software engineering and computer science. Well, they both are the two branches of the same tree, but both are importing different domains of knowledge. Software engineering is more focused on software. What is software? Software is basically a set of instructions which are written down to perform a specific task. And engineering is to develop something. So in software engineering, we're discussing about building a software and how we're going to build the software by gathering the requirements, how to maintain a software, how to fix the errors in the software. Basically, it focuses on the programming and algorithms. Whereas in computer sciences, we focus on the hardware interface, how a hardware, what is the significance of the hardware, how it is upgraded, how it is developed, which can then later be used to run the software. So both are very important domains and importing different kind of knowledge. Thank you. Thank you so much for joining us here for the discussion panel today. And thank you so much for the knowledgeable advices and the insight that you've provided for the future students who want to excel in this department and even in the field as a professional. So that's it from my side today, as I will now tell the students or advise them to grab a seat as soon as possible, apply for the admission, get themselves enrolled in this specific department and program in Hajweri University. And trust me, we have the best faculty that has to offer their expertise to take you up to the stars, and you can excel by leaps and bounds in your professionalism. Thank you so much for joining us, and take care.